students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So this is the 9th chapter of your book, that is Heredity and Evolution. Chapter 9, Heredity and Evolution. तो इसमें से हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक जो है हेरिडिटी पढ़ने वाले हैं. हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेड ट्रेट्स. इवोल्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इट इज डिलीटेड पोर्शन. Okay, so chapter number 9 will start and we'll have first topic. It is heredity. What is heredity? Okay. Heredity. So heredity is the transmission of characters. It is the transmission of characters. Which characters? The characters that are present in the parents, mother and father. So it is the transmission of characters. Characters are also known as traits. These are also known as traits. And these characters are transferred or transmitted from the parents, that is mother and father, parents, to their offspring. Offsprings means the new individuals that are formed after the reproduction. Reproductive जो process है उसके बाद जो न्यू बॉर्न बेबी समझ लो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. Okay, so what is heredity? It is the transmission of characters from parents to their offsprings. It is called heredity. Most simple words में अगर हम कहेंगे तो heredity means continuity of features from one generation to the next generation. It is the continuity of features from generation to generation. एक जनरेशन से जो कैरेक्टर्स है, फिजिकल कैरेक्टर्स, वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास होते हैं. इट इज कॉल्ड हेरिडिटी. नाउ सपोज टू पेरेंट्स आर देयर. Okay, two parents, that means one will be the male and another will be the female. Okay, we have already studied in reproduction that these both are involved in the sexual reproduction. Now sexually reproducing जो animals होते हैं, organisms होते हैं, उनके sex gametes होते हैं और जिनको हम sex cells कहते हैं. तो male जो है they produce sperm and female produces egg or ovum. Okay, now these two got fused or get fused to form a zygote. ये भी हमने पढ़ा था. They form a zygote. Okay, and this zygote then gradually develops into a young one, और जिसको हम कहते हैं offspring. Okay, तो ये जो offspring है, zygote से जो offspring develop होगा, it will show some of the similarities with the parents. इनके जो कुछ features होंगे वो बिल्कुल अपने parents के जैसे होंगे. And this means what? The hereditary information that is present in the sex cell, that is sperm and ovum, और जिसको हम कहते हैं, it is transmitted to the offspring. Okay, ovum और sperm में से इनमें offspring में वो transmit किए जाते. So we can say that gametes constitutes the link between the one generation to the another generation or next generation. Sperm and ovum जो है, they form a link. दो जनरेशन के बीच में जो लिंक होता है उनको कनेक्ट करने का, वो ये जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म करते हैं. एंड thus they pass on the paternal and maternal characters or traits to the offspring. पैटर्नल मीन्स जो मेल पेरेंट से आते हैं और मैटरनल मीन्स जो मदर और फीमेल जो पेरेंट है उससे आने वाले कैरेक्टर्स होते हैं. तो पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं. ओके, एंड दिस रिलेशन दैट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव जनरेशंस इज नोन एज हेरिडिटी. तो हेरिडिटी को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रिलेशन दैट कंटिन्यूज द रिलेशन बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन. ओके, सो दिस हेरिडिटी, एक बार फिर मैं इसको डेफिनेशन बता रही हूँ इसकी. हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. ओके, और इट इज आल्सो द transmission of hereditary information that is present in the sex cells of the parents and it is transferred into the offsprings. Okay, so this is heredity. Now next topic है, it is variations. Variations भी हमने पढ़ा हुआ है. Variation को हम simply कह सकते हैं changes that occur in the offsprings. Okay, now we know that these offsprings inherit the characters of their parents, है ना, and they resemble to the parents very closely.
बट कंप्लीटली नहीं होते हैं, मतलब उनके जो रिजेम्बलेंस है वो कंप्लीट सारे एस्पेक्ट्स में वो कंप्लीट नहीं होता है, इट इज नॉट कंप्लीट। जो भी कैरेक्टर्स स्विंग में आते हैं वो कंप्लीटली नहीं आते हैं, उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। एंड इसलिए हम देखते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब दो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होंगे वो एग्जैक्टली उनके जैसे ही दिखते हैं, बिकॉज we and other most of the animals they are reproducing by sexual reproduction, और हमने पढ़ा था कि sexual reproduction में variations के chances बहुत ज्यादा होते हैं। okay, so the offsprings are never a true copy of their parents, वो कभी भी उनकी true copy नहीं होते हैं, they can never be the true copy of the parents, and no two individuals are exactly like the members of any one species। even हम देखते हैं कि एक ही फैमिली में अगर एक सन है, सपोज टू सन्स हैं, तो दे विल बी नेवर अलाइक, वो एक जैसे नहीं होंगे, एग्जैक्टली वो सेम नहीं होते। वेरी रेयर केसेस में ट्विन होते हैं, बट नॉट इन द दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो इसमें क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, तो इन डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन, है ना। तो वेरिएशन क्या होता है, द डिफरेंसेस वेरिएशन the differences in the characters, और जिसको हम ट्रेट भी कहते हैं, ट्रेट्स among the individual of a species। the differences in the characters or among the individuals of a species is called variation। now what is species? species भी हमने डिस्कस किया था। species is the group of organisms that have similar features। species जो होता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स होता है that have, और दूसरी एक चीज होती है इसमें, सिमिलर फीचर्स तो है बट दे कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, है ना, फ्रॉम द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं एंड दे कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। ओके, एंड रिमेंबर आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग विद द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अदर स्पीसीज। अगर ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें ये जो है, तो इस स्पीसीज में सारे ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, दे कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। ये दोनों स्पीसीज जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ही होता है, उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ही होता है। सो फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो जो वेरिएशन है इट अकर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज में जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये वेरिएशंस आते हैं, मेंबर्स के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल जो लोग हमने देखा है कि इवन इन इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो है दे आर नॉट सेम, है ना। कोस्टल एरियाज है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, तो वी आर लिविंग ऑन डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट्स पे हम रहते हैं, और इनके जो फिजिकल फीचर्स है, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का जो है एक स्टेचर होता है ना? उनका जो कॉम्प्लेक्शन है जैसे कि ये कुछ क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टर्स है, जैसे कॉम्प्लेक्शन दैट मीन्स द कलर ऑफ स्किन, देन टाइप ऑफ हेयर, देन कलर ऑफ आईज, आईज का जो कलर होता है, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ चिन। तो ये जो है दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिसको हम कहते हैं कि ये कैरेक्टर्स जो है, ट्रेट जो है वो चेंज हो सकते हैं, है ना, एंड इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। सो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर ही जो चेंजेस होते हैं मेंबर्स के फीचर्स में उनको हम कहते हैं वेरिएशन। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे कि ह्यूमन हाइट जो है, हमारी जो हाइट है, इट इज अ कैरेक्टर और इट इज अ ट्रेट, है ना, एंड इसमें भी हम बहुत सारे वेरिएशन देखते हैं। सम आर वेरी टॉल, सम आर वेरी शॉर्ट, कुछ जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिसको हम ड्वार्फ कहते हैं, है ना, सम हैव मीडियम हाइट। तो इस तरह से जो है हमें इसमें वेरिएशन दिखाई देते हैं, है ना। नो ह्यूमन बीइंग्स आर सेम हाइट के हम नहीं है, वी हैव डिफरेंट हाइट्स एंड दैट इज व्हाई character or the trait which shows variations in, okay, whether you talk about the human beings, human में अगर हम बात करते हैं तो भी ये कैरेक्टर्स है, और यू
कैन थिंक अबाउट द अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर एनिमल, लाइक दूसरे जो मैमल्स है, दूसरे जो एनिमल्स है, उनमें भी ये वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं, है ना. सपोज कैट कैट एंड व्हाइट कैट अगर है, उनका अगर क्रॉसब्रीड होता है, ब्रीड ऑफस्प्रिंग्स हो गए, दे मे बी ब्लैक विथ ब्लैक स्किन, और दे मे हैव व्हाइट पैचेस ऑन ब्लैक स्किन और ब्लैक पैचेस व्हाइट स्किन. तो ये वेरिएशंस उनमें हो सकते हैं. वन अनदर एग्जांपल इज, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. Okay, here you can see one picture, not a diagram, it is a picture actually. So here is the example of variations in human beings. अब इसमें जो variation है, it is of the ear. You can see the, okay, so the lowest part of our ear is known as earlobe. इसको हमारे ईयर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, इट इज ईयरलोब. इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयरलोब इज हैंगिंग. ये जो ईयरलोब है ये फ्री है, दैट मीन्स इट इज हैंगिंग. आप भी अपना चेक कर सकते हो अभी कि आपका जो ईयरलोब है वो कैसा है, स्किन से चिपका हुआ है या फ्री. दिस इज हैंगिंग और फ्री ईयरलोब. एंड इन सम पीपल ईयरलोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड लाइक दिस. इसमें आप देखते हो ये अटैच्ड ईयरलोब है ना. तो सम पीपल हैव दिस फ्री ईयरलोब व्हाइल सम पीपल हैव अटैच्ड ईयरलोब. ओके, तो ये एक वेरिएशन हम कह सकते हैं. तो द फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर द टू वेरिएशंस फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. क्या है, दीज आर द वेरिएशन. ईयर सबके हैं बट का हैंगिंग है और किसी का अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं वेरिएशन. ईयर सब में हो, सब ईयर किसी में एब्सेंट नहीं होगा, बट हो सकता है किसी का छोटा हो, किसी का बड़ा हो, थोड़ा उसका जो एक्सटर्नल ईयर है बाहर की तरफ हो, किसी का बिल्कुल चिपका हुआ हो, या फिर ये जो उसमें वेरिएशन हो सकता है. ओके, जैसा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, सम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस इज प्रोड्यूस इवन ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें भी ये जो वेरिएशन होता है वो हम देख सकते हैं. बट उसका जो अमाउंट होता है वेरी स्मॉल स्केल पे वो होता है ना. वेरिएशंस इन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वहां भी वेरिएशन होता है, बट and the number of variations produced during the sexual reproduction is large in sexual reproduction. The variation asexual reproduction में ये कम होता है. ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर शुगर केन का प्लांट सबने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं. तो शुगर केन प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल, है ना, शुगर केन. ओके, एंड सो इफ यू ऑब्जर्व अ क्रॉप फील्ड, अगर आपने शुगर केन का फील्ड, वेरी लिटिल वेरिएशंस कैन बी सीन. केन प्लांट्स हम ऐसे देखेंगे तो सब एक जैसे, केन प्लांट्स ऑलमोस्ट लुक अलाइक, एक जैसे वो हमारे प्लांट. ओके, बट इन एनिमल which reproduce by the process of asexual reproduction, and it is due to the variations that no human beings look alike except the identical, जो identical twins, उनमें ही जो है बाकी सब में वो कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं. ओके, so we can conclude from this discussion that a number of successful variation and they are produced because of the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction, and this variation is very much needed for the organic evolution. Evolution के लिए ये जो variations needed. Okay, so this is all about the variation. Now we will see accumulation of variations. अब इसमें टॉपिक वही है जो हमने पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि accumulation of variations कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में. Accumulation of variation, how it occurs. Okay, so we know that, and we have just discussed that reproduction of organism produces the variations. Reproduction के बाद ही जो है variations हम
ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, नाउ द वेरिएशंस प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग दिस सक्सेसिव जनरेशन मतलब एक के बाद एक आने वाली जो जनरेशन होती है, तो इन जनरेशन में ये वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब वो कलेक्ट हो जाते हैं. These variations get collected in the organisms, है ना? And the significance of a variation shows up only if it continues to be inherited by the offspring for several generations. अब ये जो accumulation of variation होता है, मतलब जो characters किसी organism में उसके जो आगे आने वाले जो generations है, उनमें अगर ये continuously दिखाई देता है वो कोई particular variation, तो वो उस species के लिए significant होता है, मतलब वो काम का होता है. अगर वो उस स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए, उस स्पीसीज के मेंबर्स को सर्वाइव करने के लिए अगर हेल्पफुल है, तो दैट इज अ गुड वेरिएशन हम कह सकते हैं, है ना? सपोज इसका हमने एक एग्जांपल देखा था बैक्टीरिया का, वही एग्जांपल हम अभी देखेंगे यहाँ पर. ओके, सो सपोज अ बैक्टीरियम, सपोज इट इज अ बैक्टीरिया. ओके, एंड इट प्रोड्यूसेस टू बैक्टीरिया बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो ये बैक्टीरिया जो है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो जो है बैक्टीरिया को, ठीक है, अगेन सपोज दैट वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स जिसमें ये है और ये है, तो we have got two bacteria here, and again this bacterium reproduces asexually and give rise to another bacteria, and here also to another bacteria from this bacterium. Okay, now suppose that one of the offspring bacterium has variation, कि वो हायर जो टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर में अगर चेंजेस होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को अगर वो बेयर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इससे ये कर सकता है, बट ये करता है. नाउ दिस वेरिएशन ऑफ अ लिटिल मोर हीट रेजिस्टेंस विल गो ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन आल्सो. तो इसका ये कैरेक्टर है, जो वेरिएशन है, वो इन दोनों बैक्टीरियाज में एक्यूमुलेट हो जाता है. ओके, एंड दिस विल टू अ वेरिएंट बैक्टीरिया. तो इसको हम कहेंगे दीज आर द वेरिएंट बैक्टीरिया, एंड दे विल बी हीट रेजिस्टेंट. वो हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं और ज्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट देयर इज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज. और वो एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना? इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर. ओके, दैट मीन्स द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन जो इस बैक्टीरिया में है, इट विल एंश्योर दैट अगर फ्यूचर में कभी भी कोई हीट वेव आता है या फिर कोई अदर रीजन से एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में चेंज होता है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, है ना? और अगर हम बात करें सपोज ये बैक्टीरिया जो है, इसमें ये वेरिएशन नहीं है, दिस इज नॉट द वेरिएंट बैक्टीरिया, देन इट विल नॉट विथस्टैंड द हीट. वो उस हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, एंड ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वो मर जाएगा. इट विल, ओके, बट दीज थ्री बैक्टीरिया, और वी कैन से इसका तो हमने देख, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं था, तो इसमें जो है बैक्टीरिया हो सकता है दे विल नॉट टॉलरेट द हीट. बट ये बैक्टीरिया जिन्होंने उस वेरिएशन को अक्यूमुलेट कर लिया है, अपने अंदर उनको कलेक्ट कर लिया है, तो वो जो है ऐसी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. तो हमने हेरिडिटी देखा, देन वेरिएशन देखा और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन देखा. 3 पॉइंट्स हमने देखे. अब देखते हैं, अगर हमें आगे पढ़ना है, नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसमें जब हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल ने जो भी वर्क किया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना? बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं बायोलॉजी में जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, और आप इनको अगर समझ लो अच्छे से, तो ही आप जो है इनकी जो लॉज वगैरह है इनहेरिटेंस के, उनको समझ सकते हैं. तो वो जो कुछ टर्म्स हैं हम फटाफट उनको एक बार देख लेते हैं. ओके, तो सबसे पहला है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आपको पता है. लेट मी चेंज द कलर अगेन. सो फर्स्ट जो टर्म है, इट इज क्रोमोसोम.
Now, what is chromosome? Okay, it is a thread-like structure in the nucleus of the cell, and it is formed from the DNA and proteins. Okay, DNA and proteins से ये form होते हैं. And these chromosomes, they are present in the nucleus, and different organisms have different number of chromosomes. अलग अलग जो organisms होते हैं उनमें different number of chromosomes होते हैं. जैसे कि human beings में हम देखते हैं कि there are 23 pairs of chromosomes, है ना, जिसमें से 22 pairs जो है they are autosomes and 2 pairs are of sex chromosomes. It's not 2 pairs, sorry, 1 pair of sex chromosome. And we know that these chromosomes are the you can say chromosomes carry the inheritance traits or characters from one generation to the another generation. Okay, now ये जो chromosomes हैं उनके जो functional units होते हैं, है ना, the functional units of chromosomes, they are known as genes. तो second जो अपना term है वो है genes. So a gene is a unit of DNA on a chromosome and it controls the synthesis of protein. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो ट्रेट्स होते हैं या फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं, है ना. दे डिसाइड द स्पेसिफिक कैरेक्टर और ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, नाउ जीन्स जो है दे आर आल्सो फाउंड इन पेयर्स. ये भी पेयर्स में होते हैं. ओके, तो दीज आर द जीन्स. मेंडल ने जब ये इस टॉपिक पे रिसर्च किया था तो दैट टाइम ही वाज नॉट यूजिंग दिस टर्म. जीन्स जो है ये टर्म बहुत बाद में आई थी, बट व्हेन मेंडल कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस के जो एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे, दैट टाइम ही यूज्ड अनदर टर्म फॉर दिस जीन्स एंड ही यूज्ड द टर्म फैक्टर. उसने फैक्टर जो वर्ड है वो उसके लिए यूज किया था जीन के. ओके, बट नाउ वी कॉल इट जीन. देन थर्ड जो टर्म है इट इज progeny. Now what is progeny? Offsprings of any organism. After reproduction जो offsprings produce होते हैं they are known as progeny. Okay, newborns. Then number 4 is dominant और recessive genes. हमने अभी genes की बात की, तो एक होता है dominant gene और दूसरा होता है recessive gene. बाद में और मैं आपको इसको समझाऊंगी, बट अभी आप इनको एक बार में सारी टर्म्स को थोड़ा देख लो. तो डोमिनेंट जीन्स होते हैं द जीन्स विच डिसाइड्स द appearance of an organism even in the presence of an alternative gene is known as a dominant gene. उसके नाम से ही हमें पता चलता है dominant gene means it can express itself, है ना. It dominates the recessive gene. मैंने आपको बताया था कि जीन जो है they are always फाउंड इन पेयर में होते हैं, है ना. तो जो डोमिनेंट जीन होता है वो दूसरा जो उसके साथ वाला जीन होता है उसके ऊपर वो डोमिनेंट होता है एंड इट कैन एक्सप्रेस. तो जो एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर्स को दे आर नोन एज द डोमिनेंट जीन्स. एंड द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन. रिसेसिव जीन जो है वो तभी काम करता है व्हेन इट इज हैविंग अनदर आइडेंटिकल जीन, उसको हम कहते हैं रिसेसिव जीन. इट इज जस्ट अपोजिट टू द डोमिनेंट. तो सिंगल रिसेसिव जीन जो है इट कैन नॉट डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब वो किसी कैरेक्टर को अकेले एक्सप्रेस नहीं कर सकता, है ना. इट नीड्स अनदर आइडेंटिकल जीन. ओके, तो डोमिनेंट जीन जो है इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड द करस्पॉन्डिंग उसका जो रिसेसिव जीन होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर. जैसे कि पी प्लांट में अगर डोमिनेंट जीन हम देखेंगे तो जो कैरेक्टर होता है वो है सपोज उसका हाइट ऑफ द प्लांट. तो टॉलनेस के लिए हम यूज करते हैं टी, कैपिटल टी. एंड ये जो डोमिनेंट जीन है और उसका जो ड्वार्फनेस है उसके लिए हम यूज करते हैं टी. तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट जीन होता है एंड स्मॉल टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ प्लांट को. दैट मीन्स रिसेसिव जीन. ये हम आगे और पढ़ने वाले हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इज नंबर 5, जीनोटाइप. Genotype is the description of genes
प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है जीन्स का, वो होता है जीनोटाइप, है ना। और जीनोटाइप जो है इट इज ऑलवेज अ पेयर लेटर, वो हमेशा पेयर लेटर में हम लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको स्मॉल टी कैपिटल टी बताया, तो जैसे टी कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और दोनों स्मॉल टी है ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जिन के अलग अलग फॉर्म्स है ना, बट दे आर शोन इन डिफरेंट लेटर्स, एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में। तो जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट जो है वो हो सकता है कैपिटल टी एंड और कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो ड्वार्फ प्लांट होगा उसमें होगा दोनों स्मॉल टी। मैंने पहले बताया आपको कि कैपिटल टी जो है टॉलनेस के लिए है, और जो कि ये डोमिनेंट जीन है, तो ये जो स्मॉल टी और कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी टॉल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ हियर देयर इज नो कैपिटल टी, दैट मीन्स दिस प्लांट विल बी ड्वार्फ और छोटा होगा, ठीक है। तो दीज आर द जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स को हम इस तरह से कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से हमेशा पेयर में लिखते हैं। देन नेक्स्ट इज phenotype. Okay, the characteristic or trait which is visible in an organism, जो भी traits कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में विजिबल होते हैं उनको हम कहते हैं phenotypes. फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या है, दीज आर द phenotypes. ये कैरेक्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं, दे आर विजिबल, है ना, बिकॉज दिस ट्रेट्स कैन बी सीन बाय अस एंड दे आर विजिबल टू अस, सो दे आर द phenotypes. ऐसे कैरेक्टर्स जो विजिबल है हमारे लिए, हम उनको देख सकते हैं। The phenotype of an organism is actually a physical characteristic. Physical उसका जो appearance है, physical characteristics. Okay. Suppose genotype है T और T, कैपिटल T स्मॉल t, है ना। तो ये जो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा टॉल फिनोटाइप, है ना। टॉल, तो टॉल क्या है, फिनोटाइप है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये क्या है, जीनोटाइप। ओके। और ऐसे ही अगर हम स्मॉल टी की बात करते हैं तो इट विल रिजल्ट इन ड्वार्फ। तो ड्वार्फ जो है इट इज फिनोटाइप एंड स्मॉल टी का जो पेयर है इट इज जीनोटाइप। ओके। देन F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। सो व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस ब्रीड, है ना, टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, देन देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड फर्स्ट filial जनरेशन, है ना। When two parents crossbreed or breed to produce a progeny or offsprings, then their progeny मतलब उनके जो offsprings होते हैं they are called filial generation or F1 generation. Okay. And when the first generation, suppose this first generation है, ये parents के बाद वाली generation है first generation, when this first generation crossbreeds among themselves and they produce the second generation or second generation progeny, then this progeny is called F2 generation. F2 जनरेशन। ओके, तो ये हो गया सेकेंड फीलियल जनरेशन। ओके, so we can say that the generation produced by crossing two F1 progeny is called F2 generation, है ना। ये F1 progeny है, F1 जनरेशन जो है वो, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे F2 जनरेशन और सेकेंड फीलियल जनरेशन। और F1 जनरेशन जो है इट प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स। एक का मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। सपोज मदर एंड फादर जो है, मदर एंड फादर, these are what, these are parental generation, these are parental generation. Okay, their children, इनके जो बच्चे होंगे, इन these children will be the F1 generation, है ना, these children will be F1 generation, और इनके जो चिल्ड्रन होंगे they will be the F2 generation. मतलब
पैरेंटल जनरेशन के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे दे विल बी द F2 जनरेशन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स. ये टर्म्स जो है वो आगे हम जब मेंडल और उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, लॉज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये डेफिनेशंस और ये जो टर्म्स है बायोलॉजिकल टर्म्स, ये हमें समझने में इजी रहेंगे. ओके, so here we have finished this topic, heredity, variation, accumulation of variations, and some of the terms. In our next class we will read about the contribution of Gregor Mendel, okay, and laws of inheritance. उन्होंने जो laws बनाए थे, मतलब रिसर्च करके पी प्लांट पे उन्होंने रिसर्च ज्यादा किया था, पी प्लांट जिसको मटर कहते हैं, तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे और लॉज जो है वो भी पढ़ेंगे. ओके,